We will start with our plenary session. On this auspicious occasion, we not only celebrate the establishment of our department, but also the countless lives that have been touched, transformed, and saved through our collective efforts. Dr. Khanna? Sir. Yes, you are invited here to come on the dais. Faculty, senior professors, the technicians, the juniors, all the dignitaries who are present today. Very good morning to all of you. At the outset, I would like to extend heartiest congratulations to the organizers, the Department of Trauma Care, on behalf of the Command Hospital. I extend my congratulations on the 7th Raising Day. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. This is ये सारी बातों का निचोड़ है. The tri-services working together in sync and with the present global scenario. Professor Ashish, thank you very much for this generous introduction. I'm not sure whether I deserve all this very flowery introduction, but thank you very much. Thank you all people of the dais, chairperson of the dais, and thank you KGMU Department of Surgery. These are the pictures which are on the highways, and now it has become absolutely more common than what it was before. And as Professor Khanna has told that about the combat war scenario, now civil scenario is becoming more ghastly, more challenging to manage such kind of patients. our guests on the stage, and I will request Professor Samir Mishra to present bouquet to our dignitaries on the dais. First of all, Professor S.D. Pandey, sir. We welcome you, sir. Professor S.D. Pandey, sir, needs your introduction. He is teacher of teachers, doyen of plastic surgery, especially hand surgery. Sir. And at this stage, he is still operating and working and very landing.
gentlemen, my teachers in the crowd and on the stage. Once again, welcome to the 7th Foundation Day of a very young department of King George's Medical University, that is Department of Trauma Surgery. It is my honor and proud privilege to actually present this year's annual report on behalf of Department of Trauma Surgery, and again, brings greetings. The Trauma Surgery Department, as we all have been saying, is a young department, is led by a very dynamic HOD, Sandeep Tiwari. 2 professors and 4 additional professors make a very robust team to man 24-hour, 365 days a year, a very busy trauma setup in King George's Medical University. सर, ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमेंट का आज 7वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में और कौन कौन से लोग यहाँ पर उपस्थित रहे? सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद कार्यक्रम के बारे में। जी, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी हूँ। मैं विभागाध्यक्ष हूँ ट्रॉमा सर्जरी विभाग का, साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूँ ट्रॉमा सेंटर का। और आज ट्रॉमा सर्जरी विभाग का 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। इसमें गुजरात से डॉक्टर मंजुल जोशीपुरा, जो कि ट्रॉमा एकेडमी के डायरेक्टर हैं और जो WHO के साथ वर्क करते हैं, एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने ट्रॉमा सिस्टम कैसे सही किया जाए, कैसे बनाया जाना चाहिए, ट्रॉमा सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज़ पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उसके अलावा डॉक्टर संजय शाह, जो कि एक ट्रॉमा, हमारी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रॉमा है उसके सेक्रेटरी हैं, वो भी गुजरात से हैं और वो ट्रॉमा सर्जन हैं, रिनाउंड ट्रॉमा सर्जन हैं। उन्होंने ट्रॉमा में क्या क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से सुधार हो सकता है, इन पे अपना प्रकाश डाला है। साथ में हमारे पास ब्रिगेडियर खन्ना थे, जो कि कमांड हॉस्पिटल से स्पीकर थे, स्पीकर। उन्होंने मिलिट्री में कैसे ट्रॉमा सर्विसेज होती हैं, मिलिट्री का ट्रॉमा कैसे सिविलियन ट्रॉमा से डिफरेंट है, उस पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यक्रम में दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के संपादक श्री आशुतोष शुक्ला जी उपस्थित थे। उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार रखे प्रिवेंशन के ऊपर, मीडिया की भागीदारी के ऊपर, समाज की भागीदारी कैसे हो सकती है, कैसे हम इसमें अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इसके अतिरिक्त हमारी पूर्व प्रतिकुलपति महोदया उपस्थित थी, हमारे 3 रिटायर्ड टीचर, सीनियर टीचर्स, प्रोफेसर रमाकांत, प्रोफेसर SD पांडे, प्रोफेसर विनीत शर्मा साहब, ये लोग मंचासीन थे। और साथ ही साथ कमांड हॉस्पिटल के कमांडेंट भी हमारे यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी किस प्रकार से आर्मी और सिविलियन ट्रॉमा में क्या क्या सिस्टम है, और उन्होंने कुछ चीज़ों पे बहुत जोर दिया है कि जैसे ट्रॉमा के मरीजों का जो अल्ट्रासाउंड है, जिसको E-FAST कहा जाता है, वो रेडियोलॉजिस्ट के लिए उसका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रॉमा सर्जन को करना चाहिए, और हम लोग स्वयं अपने यहाँ करते भी। उन्होंने कहा कि इसकी शिक्षा आप दूसरे जगहों पर दें। और साथ ही साथ में हम लोगों ने का एक ही प्रयास है कि इसके साथ में हम इस तरह के कार्यक्रम और करें, जिससे कि हम लोगों को ट्रेंड कर सकें। सर, जैसे ट्रॉमा की जब हम बात करते हैं तो सड़क दुर्घटना में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोग ट्रॉमा का शिकार होते हैं, आपके पास आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो पब्लिक की जन भागीदारी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अवेयरनेस के तौर पर आप कह सकते हैं जनता से, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा ये जो बोझ है वो हल्का कम हो सके? देखिए, ऐसा है, ट्रॉमा को अब जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पहले कहा जाता था, उसको दुर्घटना नहीं कहा जाता, अब एक्सीडेंट नहीं कहा जाता है, उसको रोड ट्रैफिक क्रैश कहा जाता है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सकती हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से होती हैं। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग में कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि फेलो पैसेंजर के साथ आप बात कर रहे हैं, या मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या तेज़ आवाज़ में गाना सुन रहे हैं, या उस समय कुछ खा पी रहे हैं, या शराब पी करके वाहन चला रहे हैं। ये सारे कारण हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के। और एक सबसे बड़ा कारण होता है ओवर स्पीडिंग, कि आप अपने समय से घर से नहीं निकल रहे हैं। तो अगर जनता अपने समय से थोड़ा 5-10 मिनट का मार्जिन लेकर के निकले, ओवर स्पीडिंग ना करे, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग ना करे, साथ में जो हमारे यातायात के नियम हैं कि सीट बेल्ट लगाए, और सीट बेल्ट केवल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग आजकल 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, दुर्घटना होती है तो उसमें जिसने सीट बेल्ट लगा रखा है उसको चोट नहीं लगती, बाकी पीछे वाले लोग जो कि समझते हैं कि हमको सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं, उनको ज़्यादा चोट लगती है। इसी प्रकार से आगे सवार जो हेलमेट लगा के बैठा हुआ है मोटरसाइकिल पे, उसको चोट कम लग रही है, लेकिन जो पीछे सोचता है कि नहीं हमको हेलमेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जनता से अपील ये है कि दुपहिया वाहन पे 2 सवारियां अगर बैठी हैं तो उन दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए।
और 4 पहिया वाहन पे जितनी सवारियां बैठी हैं, 4 सवारी हैं, 5 सवारी हैं, उन सबको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। शराब पी करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, हाई स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आज ट्रॉमा सेंटर का कह सकते हैं कि 7th फाउंडेशन डे था। इसके बारे में आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया? आज ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमेंट का 7th फाउंडेशन डे है, यानी कि हम लोग 7 साल बड़े हो गए और हम लोगों ने 7 सालों में क्या सीखा, क्या उपलब्धियां करी, कैसे और अच्छा किया ट्रॉमा सिस्टम को, कैसे हमने लोगों की सहायता करी, कैसे पेशेंट्स की सहायता करी और क्या आगे हम लोग कर सकते हैं, उसी के ऊपर व्याख्यान दिए गए। हम लोगों को 2 बहुत ही अच्छे स्पोक्स पर्सन ऐसे मिले जिन्होंने आके हम लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। प्रोफेसर मंजुल जोशीपुरा गुजरात से हैं और डॉक्टर संजय शाह भी गुजरात से हैं। तो डिस्कशंस हुए, उन्होंने कुछ बातें रखी, हम लोगों ने कुछ बातें रखी और ये हुआ कि हम लोग कैसे और मरीजों का हित कर सकें, कैसे और अच्छा कर सकें ट्रॉमा सेंटर को या ट्रॉमा सिस्टम को, और कैसे आगे चल के प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी हमेशा कोशिश करती है और ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमेंट हमेशा यही कोशिश करेगा कि हम लोग के एफर्ट्स या हम लोगों का काम मरीजों के हित में हो, रिसर्च के हित में हो, स्टूडेंट्स के हित में हो और आगे चल के प्रदेश देश का नाम हम लोग आगे बढ़ा सकें। सर, ट्रॉमा सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो आम जनता है उससे क्या कुछ अपील की जा सकती है ताकि इस विभाग का जो भी कार्य है वो थोड़ा कम हो या यूँ कहें कि बेहतर हो सके? मैं आपको बताऊं कि ट्रॉमा सेंटर में हमेशा बेडों की शॉर्टेज रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास हमेशा 120-130% पेशेंट्स रहते हैं। 100% मतलब फुल हो गया, मगर उससे ज़्यादा रहते हैं, 30% 40% ज़्यादा रहते हैं। जनमानस से एक ही अपील है, अपील ये है कि भाई अपना ख्याल खुद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, गाड़ी तेज़ ना चलाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। उससे ये होगा कि भाई आपके एक्सीडेंट्स या गलत तरीके से जो गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वो ना हो, उससे आगे चल के हम लोग बेहतर कर सकते हैं। सर, आज ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमें में 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। क्या कुछ कार्यक्रम में विशेष तौर पर रहा और आम जनमानस से क्या कुछ अपील है? सर, थोड़ा सा अपना परिचय उसके बाद। मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। मैं दैनिक जागरण लखनऊ में काम करता हूँ, वहाँ स्टेट एडिटर हूँ। यहाँ मुझे डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने बुलाया था और मैंने तो जो प्रेजेंटेशन यहाँ देखा डॉक्टर संजय शाह साहब का, बहुत अच्छा था। जो डॉक्टर्स हैं जैसे उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया, बात करी, बहुत अच्छा था। और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स को मतलब जो ट्रॉमा में क्या करना चाहिए और क्या बाहर। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ट्रॉमा तक आने की नौबत बात की है, पहले तो सोसाइटी के तौर पर हमको बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। और ये बात मैं कहूँगा कि थोड़ा दुख के साथ, पर सार्वजनिक अनुशासन के मामले में भारत एक विफल राष्ट्र है। क्योंकि हम मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पार करनी है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, पीछे हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान क्या रखना है, ये हम नहीं करते। यही सब चीज़ें हैं जो समाज में मुश्किलें करती हैं, एक्सीडेंट्स करती हैं। जैसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 2022 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है कि 4,68,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और इनमें 1,61,000 मौतें हुई हैं। अब इनमें आप ये समझिए कि 50,000 से अधिक लोग जो मरे हैं वो थे जो हेलमेट नहीं लगाए थे। अब ये ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी है, किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी है, ये तो उनकी है जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। इनमें 17,000 वो लोग हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। इन 17,000 में आधे लोग वो हैं जो ड्राइविंग कर रहे थे। तो ये इसका क्या मतलब है कि आप किसी चीज़ के प्रति सावधान नहीं हैं, आप सोचते हैं कि सब डॉक्टर कर देगा। नहीं, अगर हम अपनी लेन में चलें, जो मैं आपके उससे कहना चाहूँगा लोगों से कि भाई आप मुझे बहुत चलना होता है एक्सप्रेस वेज वगैरह पर, मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि बोर्ड लगे हैं कि आप राइट से ओवरटेक करेंगे। एक तो पहली बात, एक्सप्रेस वे पर ओवरटेक क्यों कर रहे हो? सभी लोग तेज़ चल रहे हैं, पर आप ओवरटेक कर रहे हो तो कभी लेफ्ट से करते हैं, कभी राइट। एक गाड़ी राइट से कर रही है, एक लेफ्ट से कर रही है, एक ही समय में कर रहे हैं, बीच वाला कहाँ जाएगा, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी के तौर पर हमको ध्यान देनी चाहिए।
ट्रॉमा सेंटर में ये मुझे ऐसा कभी लगता है, जो अभी डॉक्टर रमाकांत साहब कह रहे थे, यहाँ एक जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर जो अटेंडेंट्स हैं थोड़ी उनकी काउंसलिंग हो सके और कोई उनको बैठे बताए। ये डॉक्टर्स जो हैं ये कहना चाहिए कि किसी भी ट्रॉमा के ना भी हों, लेकिन वो आगे आएँ, साहब 2-2 घंटे हम बैठ जाएंगे, क्योंकि अटेंडेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे हाथों में हो और आपके मरीज़ की हालत ये है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स की आधी एनर्जी तो बेचारों की इसमें जाती है कि वो तमाम फॉर्म भरवाते हैं, जो एक पेपर वर्क हो गया है। क्यों? क्योंकि अटेंडेंट्स के अंदर सब्र नहीं है, समझ नहीं है, और मीडिया जो है हमारे जैसे लोग उसको बहुत हवा दे देते हैं, तो कई बार वो गलत होता है। कभी ठीक होता है, ऐसा नहीं है, कभी ठीक भी है। तो थोड़ा हमारे स्तर पर हमें सेंसिटाइज होना चाहिए और मतलब यही एक काम मीडिया का है कि अगर वो सेंसिटाइज करे, लोगों को बताए, तो शायद लोग ज़्यादा समझदार हों और एक कुशन उनके अंदर आए पर्सनैलिटी में यहाँ आने पर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक अपने स्तर पर ही सुधार सकती है, एक जागरूक नागरिक होकर के। जैसे सड़क दुर्घटना की आपने बात की, तो उसमें ऐसे लाखों लोग होते हैं जो अपनी लापरवाही से ही अपनी जान गंवाते हैं, तो और बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, तो ये उनका थोड़ा सा बोझ कम किया जा सकता है अगर आप थोड़े से जागरूक हो जाए तो। बिल्कुल, आप कभी इसकी तुलना, हर आदमी विदेश नहीं जा सकता, पर आप कभी विदेशियों को देखिए, वो मथुरा में आए, वृंदावन में आए, बनारस में आए, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, कहीं आए, आप देखिए जब वो खड़े होते हैं तो 2 लोगों के बीच में वो 1 फीट का 1.5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल चिपक के चलेंगे। क्यों करते हैं? कोरोना ने इतना, हम फिर भूल गए। आप कभी देखिए ट्रेन से लोग उतर रहे हैं तो अब ट्रेन पूरी रुकी भी नहीं है और वो ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में कूदते हैं। क्यों कर रहे हो? पैर फिसलता है। छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनका हम ध्यान, और ऐसा नहीं है, विदेशियों ने इसको बहुत अपनाया हुआ है। कमी क्या है? मैं जब पढ़ता था तो हमारे यहाँ मॉरल साइंस का एक चैप्टर होता था, एक किताब होती थी। अब सिलेबस से मॉरल साइंस ही हटा दी गई है। हमको बताया जाता था कि आपकी आज़ादी तब तक है, उसमें एक चैप्टर था, नहीं आप छड़ी घुमाइए, लेकिन आपकी आज़ादी तब तक है जबकि वो तब तक वो छड़ी किसी दूसरे की नाक से नहीं लगती। बिल्कुल। तो आप इतना डिस्टेंस मेंटेन रखिए। तो वो मॉरल साइंस का चैप्टर हटा दिया गया, किसी की उसमें कोई रुचि नहीं है। और मैंने फिर से कहा कि सार्वजनिक अनुशासन की दृष्टि से भारत एक विफल राष्ट्र है। हम मोबाइल पर बात कैसे करते हैं, सड़क पर चलते कैसे हैं, ये हमको बहुत सीखने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छे रोल मॉडल्स इसके लिए जो हमारे फॉरेनर्स हैं। आप मतलब मैं फॉरेनर के हाथ में तो मोबाइल कभी देखता ही नहीं हूँ, वो जेब में रखता है। हमारे यहाँ एप्पल का फ़ोन अगर है तो वो उल्टा करके ही दिखाएगा कि देखो मेरे पास एप्पल है। अरे ये क्या मतलब है भाई? तो हम दिखावे में ज़्यादा चले गए हैं, ठोस चीज़ों पे। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, इससे जनता में बहुत बड़ा मैसेज आएगा और उनमें सुधार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपको शुक्रिया, थैंक यू। KGM 89.6